So today we will understand playing with numbers का even and odd numbers के बारे में जानेंगे और आगे वहां से पढ़ाई करेंगे. तो सबसे पहले even numbers. Do you know what are even numbers? Yes, even sir. क्या? मतलब 2 4 Okay. All. हाँ. By 2 is divisible by 2. All natural numbers that are exactly divisible by 2, exactly divisible by 2 are called even numbers. ठीक है. या फिर ऐसा बोल लो, all the multiples of 2 are called even numbers. All the multiples of 2 are called even numbers. आया इतना समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे एग्जांपल हो गया 2, 4, 6, 8, 10. These are all even numbers. Now, one thing you have to understand here is कि we are not talking about 0. Although 0 is a multiple of 2. 2 into 0 is equal to 0. But we are not talking about 0. So except 0, if we multiply any natural number with 2, so whatever answer we get is a even number. Getting me? Now, how many of you have heard about the word consecutive? Consecutive is one after another. अगर हिंदी में बोला जाए तो एक के बाद एक. तो if the question is write first 5 consecutive even numbers. क्या बोल रहा है कि पहले 5 एक के बाद एक आने वाले इवन नंबर्स को लिखिए. राइट फर्स्ट 5 consecutive even numbers. So 2, 4, 6, 8 and 10 are the first 5 consecutive even numbers. आया समझ में? Yes, sir. उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑड नंबर्स के बारे में. जस्ट इसका जो बच गया कि द नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2 या फिर द नंबर्स दैट आर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2. द नंबर्स दैट आर नॉट divisible by, not completely divisible by 2, not completely divisible by 2, or are not the multiples of 2. Multiples of 2. तो सॉरी एग्जांपल हो गया 1, 3, 5, 7, 9 and so on. Again we are not including 0 here. We are not including 0 here क्योंकि बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर्स के अंदर 1, 2, 3 इस तरह के नंबर्स आते हैं. और इसको अगर और सब डिवाइड करें तो इसके अंदर इवन और ऑड नंबर आते हैं. तो ना इवन में 0 आ रहा है ना ऑड में 0 आ रहा है क्योंकि नेचुरल नंबर सबसे बड़ा सेट है. सबसे ऊपर नेचुरल नंबर, उसी के अंदर इवन है और ऑड है. तो जब नेचुरल नंबर में ही 0 नहीं है तो यहाँ पे भी हम लोग 0 के बारे में बात नहीं करेंगे. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. All right. So we'll get into the third part. Even खत्म हुआ, odd खत्म हुआ. अभी we will be talking about some facts about even and odd numbers. Some facts about even and odd numbers. What are the facts? The sum of two even numbers is always even. The sum of two even numbers is always even. ये fill in the blanks आ सकता है. कोई भी दो इवन नंबर बोलो, 2 एक इवन नंबर है, 8 एक इवन नंबर है, तो we'll get 10.
even plus even will give us even. Now the surprising thing is the sum of two odd numbers are also even. The sum of two Odd odd numbers. odd numbers is also Even number. even. Even number. इवन नंबर. जैसे एग्जांपल अभी हम लोग अगर ले हैं 7 plus 3. 7 plus 3 is equal to 10. 10. ऑड प्लस 10. ऑड आंसर इज इवन. थोड़ा सा इसको ब्रेक करके हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है. अगर इसको ब्रेक करूं तो क्या होगा. The 4 और 3 में ब्रेक कर सकता हूं. 4 3 3 में ब्रेक कर सकता हूं. Yes, sir. अब 4 प्लस 3 को क्या कर सकता हूं. 3 कॉमन ले आया. 1 plus 1 रहा. ओके इसमें से 3 को मैं कॉमन ले आया. 1 plus 1 रह गया. इसको मैं लिख सकता हूं 2 into 2 और ये बन गया 3 into 2. अभी देखो एक मजेदार चीज. दोनों में 2 कॉमन है. ले आया तो 2 plus 3 बचा. अब देखो 2 into समथिंग मतलब द एंटायर नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2. कितना ब्यूटीफुल है. आई जस्ट ब्रोक इट. 4 plus 3. उसके बाद जो दोनों सेम थे उसको कॉमन ले आया तो इधर भी 1 बचेगा इधर भी 1 बचेगा. 3 कॉमन आ गया तो 1 plus 1 बचा. अब इसको मैं 2 into 2 लिख सकता हूँ. इसको 3 ये 1 plus 1 2 हो जाएगा तो 3 into 2 लिख सकता हूँ. अब इसमें और इसमें 2 कॉमन है तो 2 को बाहर ले आया. अंदर क्या बचा 2 plus 3. 2 plus 3. तो समथिंग 2 into something will obviously be even number, no? Because we also spoke कि any multiple of 2 is even number. Is it clear? Yes, sir. Okay. Number 3rd. The sum of an even and an odd number is always odd. Sum of an even and an odd number is always odd. Obviously, कोई भी एक odd number में हम लोग even number डालेंगे तो आंसर हमेशा odd ही आएगा. Odd plus even will give us odd. Is it clear? Making sense? Yes, sir. Number 4. The product of two even number is always even. The product of the multiplication of two even numbers is always even. देखते हैं एग्जांपल के साथ. कोई एक इवन नंबर लेते हैं. मान लो 18 लिए और एक इवन नंबर लेते हैं 24. सॉरी मल्टीप्लिकेशन करना है. 18 लिए 24 लिए. अब ये बोल रहा है कि इसका आंसर भी इवन आएगा. मैं बिना मल्टीप्लिकेशन की कोशिश करते हैं इसको करने का. ठीक है विदाउट मल्टीप्लिकेशन. ये क्या है इसको ब्रेक कर सकता हूँ 2 into 9 और इसको ब्रेक कर सकता हूँ 2 into 12. Isn't it? Yes, sir. इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है. मतलब ये भी एक इवन है ये भी एक इवन है. या फिर 2 को बाहर अगर ले आऊं. बाहर मतलब क्या सामने लाऊं अगर तो सब में ही 2 मल्टीप्लाइड हो रहा है. द एंटायर नंबर मान लो इसको पकड़ लेता हूं एक साथ तो द एंटायर नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2. दैट मीन्स दिस इज अ इवन नंबर बिकॉज वी नो एनी मल्टीपल ऑफ 2 इज अ इवन नंबर. तो सिंपल है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इवन नंबर इज इवन. Number E. The product of any two odd number is always Odd number. odd. Simple है. 3 into 5. Odd into odd will give us odd. 15. Right. Next, the product of a even number and an odd number क्या होगा. Product It's always of even. the product of an odd number and even number is always Even number. even number.
2 into 5 will be इवन नंबर, ऑब्वियस सा बात है ना, क्योंकि इवन 2 का मल्टीपल हुआ अगर कुछ भी तो वो उसको इवन होना ही है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या जाने कि एक जाने इवन में अगर इवन ऐड करेंगे तो आंसर इवन आएगा, ये एक जाने। ऑड में अगर ऑड ऐड करेंगे, ओडी लिख देता हूं, ऑड में अगर ऑड ऐड करेंगे तब भी इवन आएगा, ये दो चीज गया। अगर इवन में ऑड ऐड करेंगे तो आंसर ऑड आएगा, ये गया। अगर इवन का प्रोडक्ट लेंगे, इवन इंटू इवन लेंगे तो आंसर भी इवन आएगा। अगर ऑड इंटू ऑड करेंगे तो आंसर ऑड आएगा। अगर इवन इंटू ऑड करेंगे तो आंसर इवन। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हमको याद रखना है। हो गया? यस सर। तो अगर क्वेश्चन पूछे जीरो के बारे में बताओ क्या ये इवन है या ऑड है, तो क्या बोलोगे? जीरो इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके, नेक्स्ट आएंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे इंग्लिश में वॉवेल्स होता है उस तरीके से प्राइम नंबर्स होता है। अब प्राइम नंबर्स क्या है, हम लोग इसके पहले क्लास में फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में बात किए थे कि जैसे अगर यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, इट गिव्स राइज टू 10, तो ये दोनों तो फैक्टर्स हुए 10 के, एंड 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये बात किए थे। अब सर 5 into 4 is equals to 20. हाँ सॉरी, 5 into 4 is equal to 20, my mistake, sorry. तो 20 is a multiple of 5, 20 is a multiple of 4, 5 is a factor of 20, 4 is a factor of 20, इतना पता था हमको। तो प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे इस सारे इस एग्जांपल में पूरा उठा के हम लोग काम करते हैं कि 20 के फैक्टर्स कौन कौन है। अभी तो ये पता चला कि 20 के 5 भी एक फैक्टर है, 4 भी एक फैक्टर है। अब 20 2 से भी डिविजिबल है, 20 10 से भी डिविजिबल है कि नहीं है? 20 20 से भी डिविजिबल है और 21 से भी डिविजिबल है। ये सारा ट्रू है? यस सर। ये सारी चीज ट्रू है। तो 20 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब आते हैं 5 के बारे में बात करते हैं। 5 के कितने फैक्टर्स हुए? 1 और 5। 4 के बारे में बात करते हैं। 4 के कितने फैक्टर्स हुए? 1 2 एंड 4। तो क्या पता चला अभी हमको इस सारे केस में कि 20 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, 5 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं और 4 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे और वो भी बड़ा प्रेडिक्टेबल है कि वो दोनों फैक्टर्स में से एक फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर वो खुद होगा, तो ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। क्लियर? और इसके अगेंस्ट में जो खड़े हैं कंपोजिट नंबर्स, वो क्या हैं? ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। बड़े सिंपल। यस सर। अब इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि 1 जो एक नंबर है उसके बारे में क्या बता सकते हैं हम लोग? 1 तो सिर्फ 1 से ही डिविजिबल है और तो कोई इसका डिविजिबल नहीं है और किसी से तो 1 डिविजिबल नहीं है। सो 1 बिकम्स व्हाट? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। उधर बात किए थे 0 के केस में वो ना इवन है ना ऑड है, और प्राइम और कंपोजिट के केस में 1 क्या है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर है? यस सर। ठीक है। सो अ प्राइम नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 which is divisible only by itself and 1। क्या बोल रहा है? द प्राइम नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1 which is divisible by only 1 in itself। और सिंपलर लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर बोल लो which is only divisible by 1 and itself, या which has only 2 factors। Composite, a natural number greater than 1 which is not prime is called a composite number। So these are two different things। Composite ऐसे जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर ऐसे जिसके ओनली 1 फैक्टर है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट।
तो अगर नेचुरल नंबर्स को हम लोग क्लासिफाई करने की कोशिश करें, तो एक तो ये हो गया इवन और ऑड के क्लासिफिकेशन में आ सकता है, दूसरा आ सकता है प्राइम नंबर्स प्लस कंपोजिट नंबर्स। क्या बात कर रहा हूं, इवन प्लस ऑड नंबर्स मिलके नेचुरल नंबर्स बनाते हैं, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स मिलके नेचुरल नंबर बनाते हैं। सिर्फ एक इसमें क्या है पिक्युलरिटी कि वन जो है, वन इसमें इंक्लूड अभी नहीं है, क्योंकि वन तो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। तो प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड वन, दे टुगेदर मेक अप द सेट ऑफ नेचुरल नंबर या फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. All right. So next important topic that we will go is co-prime numbers. Now, one word of caution, although here it is written prime, but the numbers involved in this part may not be prime numbers. क्या बोल रहा हूं? The numbers, although the name is co-prime numbers, but the numbers that fall into co-prime numbers need not be prime numbers. क्या मतलब है, आगे बात करते हैं। अब जब को लग गया तो हम लोग यहाँ पे पेयर के बारे में बात करेंगे। अभी तक क्या था, इवन नंबर अकेला नंबर था, 2 4 ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है। ऑड नंबर वैसे 3 5 ये एक ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर है। लेकिन जब हम लोग को प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो दो दो नंबर के बारे में बात करेंगे। क्या 2 और 4 को प्राइम नंबर्स हैं? समझ में आ रहा है कैसे बात करेंगे? क्या 2 और 4 को प्राइम नंबर्स हैं? हमेशा पेयर में यहाँ पे हम लोग को बात करना है, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है कि ऐसे दो नंबर्स, मान लो एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, अगर इस दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ वन इज कॉमन, सिर्फ और सिर्फ वन इज अ कॉमन फैक्टर, then we can say A and B are co-prime. If and only if A and B have one as the common factor, then we can say A and B are co-prime. Now the condition again, A and B may or may not be prime numbers. It doesn't guarantee that A and B will be prime numbers. अब आते हैं एग्जांपल पे। एक नंबर में लिया 2, एक नंबर में लिया 7। अब 2 के फैक्टर्स है 1 और 2, 7 के फैक्टर्स हैं 1 और 7। इस दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो 2 and 7 आर को-प्राइम। क्या बोलूंगा मैं? 2 and 7 आर को-प्राइम। इस केस में तो मान लो दोनों प्राइम भी थे, लेकिन एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, 4 और 9। 4 के फैक्टर्स 1 2 and 4, 1 3 and 9। अब इसमें और इसमें भी एक ही फैक्टर कॉमन है 1, तो क्या बोलूंगा? 4 and 9 आर को प्राइम। although 4 and 9 both are here composite numbers, independently they are composite numbers, but together they are prime numbers. Clear? Yes, sir. Now Om, सर You're जो welcome. कि आप जो ऐसे बोले डिफरेंट नंबर, हम यदि ऐसे बोले 2 and 3 वो को-प्राइम होंगे? आएंगे अभी उस पे आएंगे, अभी आ रहे हैं उस पे कि इजीली कोप्राइम नंबर्स अगर हमको पता करना है। मान लो क्वेश्चन में दिया है राइट 10 कोप्राइम नंबर्स, 10 पेयर्स ऑफ कोप्राइम नंबर्स, तो इजी कैसे हो सकता है कि 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6। देखो इसका फैक्टर 1 2, एक इवन है एक ऑड है। इवन और ऑड के बीच में, इवन और ऑड नंबर के बीच में सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन होगा, एक इवन नंबर और ये एक ऑड नंबर है। इस दोनों के बीच में क्या होगा? एक ही फैक्टर कॉमन होगा, isn't it? तो इधर आ जाओ वापस, देखो इसमें भी 1 और 3, 1 और 4। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर नेचुरल नंबर्स हम लोग उठाने चलेंगे, पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो हम लोग को पेयर ऑफ को-प्राइम नंबर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। अभी इसमें एक की पॉइंट याद रखो कि पेयर ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स, पेयर ऑफ एनी टू prime numbers are
ऑलवेज को प्राइम। क्यों? क्योंकि कोई भी प्राइम दो नंबर उठाएंगे, मान लीजिए 7 और 11 उठाए, तो इसका 2 ही फैक्टर होगा और इसका भी 2 ही फैक्टर होगा और कॉमन सिर्फ 1 ही होगा। तो पेयर ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। ओके, बट उसका ऑपोजिट ट्रू नहीं है कि ऑल द को प्राइम नंबर्स, जैसे 4 और 9 को प्राइम है, लेकिन क्या ये प्राइम नंबर्स हैं? नहीं है। ऑलराइट, सो एनी टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, but two co-prime numbers need not be both prime numbers. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now we will talk about twin prime. Twin prime क्या है? इसमें हम लोग प्राइम नंबर्स के बारे में ही बात करेंगे। को प्राइम छोड़ के बाकी सब में हम लोग प्राइम नंबर्स के बारे में ही बात करेंगे। ट्विन प्राइम क्या है? ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में डिफरेंस 2 का हो। क्या बोल रहा हूं? ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में डिफरेंस 2 का हो, जैसे कि 3 और 5, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 है। 7 और 11, 7 और 11 नहीं, सॉरी, 11 और 13, इन दोनों के बीच में भी 2 का है। 5 और 7, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस 2 का है। और यहाँ पे नेसेसरी है कि दोनों नंबर्स भी प्राइम नंबर्स हो। ओके, देयर शुड बी अ डिफरेंस ऑफ 2 एंड they both must be prime numbers. Clear? So the prime numbers that differ by 2 are called twin primes. The prime numbers that differ by 2 are called twin prime. Clear? Twin primes. Yes, sir. All right. So twin prime गया, अभी आएंगे prime triplet. Prime triplet. These all are the short questions that might come. Write the prime triplet. अब twin prime में 2 का डिफरेंस था, prime triplet में भी 2 का डिफरेंस है, लेकिन कंडीशन ये है, कंडीशन तो नहीं, ये जान लो कि दुनिया में सिर्फ 1 and only 1 प्राइम ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है, जैसे कि 3, 5, 7, इन दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। ट्रिपलेट मतलब 3 होंगे। ऑलराइट, Yes, sir. सॉरी, तो 3, 5, 7 हो गया हमारा प्राइम ट्रिपलेट। अब इस अभी तक हमको और कोई प्राइम ट्रिपलेट मिले नहीं है, सो वी विल ओनली have 3, 5 and 7 as the prime triplet. A set of 3 consecutive prime numbers differing by 2. A set of 3 consecutive prime numbers that differ by 2 are called, is called a prime triplet. A prime triplet, and we have only one and only one prime triplet. Clear? Yes. Okay. एक और पॉइंट वी हैव टू नोट। अभी मैं प्राइम नंबर्स लिखता हूं पहले, ठीक है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ऐसे में कुछ प्राइम नंबर्स लिखा। अब क्या एक ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग कि 2 को छोड़ के बाकी सारे जो भी हैं सारे ऑड नंबर्स हैं। 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, 11 भी, 13 भी, 17 भी, 19 भी, 23 भी, 29 भी, 31, सारे ऑड है। तो हमको क्या पता चला कि एक्सेप्ट टू ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। क्या बोल रहा हूं? एक्सेप्ट टू ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। बट इसका ऑपोजिट अगर बात करूं कि क्या ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स? नहीं, ऑब्वियसली, बट ऑल ऑड नंबर्स
prime numbers. नॉट प्राइम नंबर्स. 9 ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है. ओके. इसका मतलब दी ओनली इवन प्राइम नंबर is 2. Clear? So now we'll write some important facts related to prime numbers. Number 1 is neither prime nor composite. 2 is the smallest and only even prime number. ठीक है. Every prime except 2 is odd. ये तो पता है हमको, अभी जस्ट किए. Every prime except 2 is odd. Composite numbers need not be even. Composite numbers need not be even. 9 is the smallest odd composite number. 9 is the smallest odd composite number. Composite numbers need not be an even number. Okay. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 95, 96 मतलब सबसे लॉन्गेस्ट चेन अगर 0 से 100 के बीच में बात किया जाए जहां पे एक भी प्राइम नंबर्स नहीं आ रहा है वो है ये वाला चेन. 90, 91, 92, 93, 94, 95 and 96. This is the longest consecutive numbers less than 100 which are all composite having no prime numbers between them. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now next, every even number greater than 4 can be expressed as sum of two odd primes. Every even number greater than 4, every even number greater than 4 can be expressed as sum of prime. Expressed as sum of prime. 4 से ऊपर कोई भी एक इवन नंबर बोलते हैं हम लोग, 6 बोल लीजिए. It can be expressed as sum of prime numbers. जैसे 3 plus 3 sum of prime. 10 का बात करेंगे तो 5 plus 5 या फिर 7 plus 3 दोनों हो सकता है. तो any even number greater than 4 can be expressed as sum of primes. Clear? Yes, sir. The number of primes are infinite, and there is so the numbers of now next point is the numbers of primes are infinite. मतलब अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड है मतलब लार्जेस्ट प्राइम नंबर पता नहीं है. So there is no largest prime number. So there is no largest prime number. उसके बाद नंबर नेक्स्ट पॉइंट है a natural number greater than 1 is either a prime or has a factor which is prime. A natural number greater than 1 जैसे 2, 3, 4, 5 is either a prime or has factors which is prime. ये तो प्राइम है, ये भी प्राइम है. ये क्या, ये प्राइम नहीं है लेकिन इसका फैक्टर्स प्राइम होंगे. जैसे 2 into 2
ये इसके प्राइम फैक्टर्स हुए। 5 प्राइम है तो क्या बोल रहा है, एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 इज आइदर अ प्राइम नंबर और हैज फैक्टर्स एज प्राइम। क्लियर हुआ? लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स, क्वेश्चन सभी एक दो करेंगे। लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन, विल डू फ्यू क्वेश्चंस। लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 45 करेंगे। जैसे पहला वाला 23, फिर 29 और कुछ है बीच में, फिर 31, 37, 41, 43 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 तो प्राइम नंबर्स आ गया 20 से 45 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्रेस 40 as sum of two primes, as sum of two primes। ठीक है, तो 40 का दो ठो सिंपल निकालने के लिए देख लो, इसका हाफ कितना होता है 20 के आसपास के फैक्टर्स देखो, 20 के आसपास के प्राइम नंबर्स देखो। 20 से आसपास कौन सा प्राइम नंबर है, 20 से इधर आएंगे तो 19 एक प्राइम नंबर है, और क्या है 23 है, और तो कुछ नहीं है, 23 है। उसके बाद 19 23 एक्सीड कर जा रहा है, और उससे छोटा कोई प्राइम नंबर है क्या, 17 है। तो 17 प्लस 23 हो रहा है 17 प्लस 23। क्या किया मैं, इसको डिवाइड किया, बीच वाला मिल गया, उसके आसपास का प्राइम फैक्टर्स देख रहा हूं मैं, प्राइम नंबर्स देख रहा हूं। क्लियर? इससे जल्दी होगा। एक्सप्रेस 32 आर सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 32 आर सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स, वो भी हो जाएगा। एक्सप्रेस 32 आर सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। टू ऑड प्राइम निकालना है, हम लोग अपने मेथड में पहले जाते हैं, नियरेस्ट 16 है, 16 के इधर कोई प्राइम नंबर्स है, ऑड प्राइम होना चाहिए, प्राइम तो ऑड ही होगा। 16 के इधर क्या है प्राइम नंबर, 13। और 16 के इधर क्या हो सकता है जिसमें ऐड करें तो ये है, हाँ 17 और ये करने से हो रहा है क्या 30 हो रहा है। उससे आगे जाएंगे 19, करेक्ट, तो 13 प्लस 19 हो गया, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द नंबर दिस एंड दिस आर ट्विन प्राइम्स और को प्राइम्स। दो नंबर दिया है, 35 दिया है, 37 दिया है। अब पूछ रहा है कि ये ट्विन प्राइम है या को प्राइम्स है, क्या है। तो ट्विन प्राइम का याद है डेफिनेशन, ट्विन प्राइम में हम लोग बात कर रहे थे कि दोनों नंबर प्राइम होंगे और दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का होगा। को प्राइम के बारे में क्या बात कर रहे थे, दोनों नंबर कुछ भी हो, फैक्टर कॉमन 1 होना चाहिए, और कोई फैक्टर कॉमन 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 35 तो प्राइम नहीं है क्योंकि इट इज डिविजिबल बाय 5। 37 लुक्स एज प्राइम एंड दीज टू हैव अ डिफरेंस ऑफ 2। एग्री करते हैं कि डिफरेंस है 2 का, लेकिन ट्विन प्राइम तो नहीं बन सकता क्योंकि दोनों ट्विन प्राइम के लिए दोनों प्राइम चाहिए। तो ये क्या बन सकता है एक्चुअली में ये है अपना को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इसके और इसके फैक्टर्स में सिर्फ 1 ही कॉमन होगा इन दोनों के बीच में। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, परफेक्ट नंबर्स। क्या बात कर रहे हैं, परफेक्ट नंबर्स। क्या है ये नंबर्स, ऐसे नंबर जो अपने सारे फैक्टर्स को मिला देने से, सम कर देने से बनता हो, उसको छोड़ के। जैसे एक नंबर है 6, इसका फैक्टर क्या है 1 है, दूसरा फैक्टर 2 है, तीसरा फैक्टर 3 है,
चौथा फैक्टर 6 है, तो खुद को छोड़ के अगर इस सारे फैक्टर्स को मैं मिला देता हूं तो आंसर मेरे को 6 मिल रहा है. सो दिस इज अ परफेक्ट नंबर. क्या डेफिनेशन हुआ? अ नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर if it is equal to the sum of all of its factor excluding itself. If a number is a sum of all of its factors except itself, it is called a perfect number. It is called a perfect number. क्लियर हुआ? Yes, sir. हमको आज तक पहला 3 परफेक्ट नंबर मिला है सिर्फ, जो कि है 6, 28 एंड 496. क्या क्या मिला है? 6, 28 एंड 496. बस these 3 आर द परफेक्ट नंबर्स. सर आज साइंस क्लास नहीं होगा? होगा? नहीं, सर ने ग्रुप में भेजा है कि आज नहीं होगा. माइट बी. तो यहां तक क्लियर है सबको? यस सर. Yes, sir.